Hello everyone. Oh, very good morning students. I am Deepa and again here with the same chapter, Civics chapter 4, Understanding Laws. So let's move towards the chapter. In this chapter we'll learn about what are laws, do law applies to all, how do new laws come about and how laws become unpopular and controversial, what should we as citizens do under such circumstances? So students, yesterday in my previous video we have learned about what are laws and do laws apply to all. Today we are going to start our new topic, that is how do new laws come about. So let's start. How do new laws come about means ये नए कानून किस तरह से बनते हैं. The Indian Parliament has an important role in making laws. It makes laws for the entire country. An important role of Parliament is to be sensitive to the problems faced by people. Whenever people think that a new law is necessary, they propose for it. The Parliament then comes forward and does what is required. So let's understand in Hindi students. जो हमारी पार्लियामेंट है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है टू मेक लॉज. मीन्स कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये जो लॉ बनाते हैं ये एंटायर कंट्री के लिए पूरे देश के लिए बनते हैं. इट मेक्स लॉज. जो पार्लियामेंट है लॉ बनाती है पूरे देश के लिए. एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय people. So students, meaning of sensitive is showing that you are conscious of or you are able to understand people's feeling or problem. We can say samvedanshil means you are having that much capability to understand the people's feeling or problem. So पार्लियामेंट का ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि उसको जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसके प्रति क्या होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा. कि ये एक जिम्मेदारी है संसद की कि लोगों की जो सामने आ रही समस्याएं हैं उनके प्रति वो क्या हो, संवेदनशील हो. और जब भी whenever the people think that a new law is necessary they propose for it. जब भी लोगों को लगता है कि एक नए लॉ की ज़रूरत है लोग उसको सामने रखते हैं और उसके लिए द पार्लियामेंट देन कम्स फॉरवर्ड एंड डज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. जो भी रिक्वायर होता है लॉ बनाने के लिए वो पार्लियामेंट को करना होता है और पार्लियामेंट को इस चीज़ को लेकर के सामने आना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, now we are going to discuss about an issue that is domestic violence. We will see that what parliament has done and how the issue of domestic violence was brought to the attention of the parliament. किस तरीके से ये घरेलू हिंसा की जो सवाल था ये संसद तक आया और फिर उसके वो प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि प्रोसेस टू अडॉप्ट फॉर द इशू टू बिकम लॉ, इसको एक लॉ बनाया किस तरीके से गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने. जो डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा की रोकथाम करने के लिए कानून ने कैसे एक नया कानून बनाया और उसका क्या प्रोसेस था. So the issue of domestic violence was raised by the people. It was brought to the attention of Parliament and the process adopted for this issue to become a law. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was implemented to protect women from being abused and injured by male. The role of citizens is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. The meaning of domestic violence and what is domestic violence we will learn further. I am just explaining this slide in Hindi students. दैट जो ये मुद्दा था डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का, ये लोगों के द्वारा ही रेस किया गया
और फिर इस पर पार्लियामेंट ने अपना अटेंशन पे किया, ध्यान दिया, और इस पूरे प्रोसेस को एक इम्पॉर्टेंट समझ के इस मुद्दे को एक लॉ में बदल दिया। और वो जो लॉ था वो कौन सा लॉ बना? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, विच इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 2005। वाई? टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड इंजर्ड बाय मेल। यानी कि जो घरेलू हिंसा हो रही है फीमेल्स को मेल्स के द्वारा जो मारपीट की जा रही है या अब्यूज़ किया जा रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। द रोल ऑफ सिटीजन्स इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम different concerns that people might have into laws। ये इसका जो लोगों का जो रोल है, सिटीजन्स का, जो नागरिकों की जो भूमिका है कानून को बनाने में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और लोगों की बहुत मदद की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट को। टू फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज, कि वे जनता की जो चिंताएं हैं उनको कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो जो जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कानून के दायरे में लाने के लिए क्या करते हैं? गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट की हेल्प करते हैं। So this is the explanation of the slide. Now move towards what is domestic violence, students. Later will understand this. Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Abuse of the woman can also include verbal, sexual and economic abuse. डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा स्टूडेंट्स, क्या होती है कि किसी भी परिवार का कोई पुरुष या सदस्य, जब जनरली मतलब हस्बैंड्स ही होते हैं जो कि किसी भी फीमेल को, यानी कि पत्नी को या फिर बहन, किसी को भी के साथ अगर मारपीट करते हैं या उसे चोट पहुंचाते हैं, या फिर वी कैन से कि धमकी भी देते हैं, थ्रेट भी है इफ़, तो उसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं। इंजरी, और ये जो इंजरी है स्टूडेंट्स, ये किस टाइप की हो सकती है? फिज़िकली भी बीटिंग अप हो सकता है और इमोशनली अब्यूजिंग भी हो सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा को जो नुकसान, या तो शारीरिक नुकसान हो रहा है, फिज़िकली बीटिंग अप है, या तो फिर क्या है? भावनात्मक शोषण है। ठीक है, इमोशनली उसको हार्म पहुंचाना है। ठीक है, ज़्यादातर ये किनके बीच में होता है? हस्बैंड वाइफ के बीच में ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। Abuse of the women can also include verbal, sexual and economic abuse। और ये शोषण कैसे? वर्बली, मुंह से बोलकर भी कर सकते हैं, पीट के भी कर सकते हैं, मार के भी कर सकते हैं, और इकोनॉमिक अब्यूज़ करके भी कर सकते हैं, आर्थिक शोषण भी हो सकता है। और जैसे कि हर समय कुछ नया ताना वाना देते रहना, ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड है। So this is all about domestic violence. I hope you are able to understand what is domestic violence, and now move towards what government has done to establish it as a law. As we have seen, the Protection of Women for Domestic Violence Act implemented in 2005, and to protect women and being abused and injured by male. So the role of citizens is crucial. So crucial means students extremely important, बहुत important है कि पार्लियामेंट को जो नागरिक हैं वो सपोर्ट करें, और जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो हमारी क्या हैं प्रॉब्लम्स हैं, उनकी परवाह करें। So from establishing the need for a new law to its being passed, at every stage of the process, the voice of citizens is a crucial element. This voice can be heard through TV reports, newspapers, editorials, radio broadcast, local meetings,
all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people. So students, जो ये पूरी लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है, जो इस प्रक्रिया का जो हर एक स्टेज है, जो चरण है, उसमें नागरिकों की ही आवाज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे मेन क्रूशियल होती है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती है। क्रूशियल मीन्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण होती है नागरिकों की आवाज़। और ये आवाज़ हमें कहाँ से पता चलती है? ये आवाज़ हमें सुनने में आती है थ्रू द टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, लाइक कि जो जो टेलीविज़न में जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो अखबारों में जो संपादकीय वगैरह निकलते हैं, रेडियो प्रसारणों से, और जो आम सभाएं होती हैं, आम नॉर्मली जो मीटिंग्स होती हैं, उनके ज़रिए भी सुनने में आती हैं और लोगों के द्वारा ही व्यक्त की जाती हैं। इन सारे जो संचार के माध्यम हैं, वी ऑल नो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं ये, जो के माध्यम से ही ये चीज़ कहाँ तक पहुँचती है? संसद तक पहुँचती है। और संसद का काम क्या है? इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने लाना, एक्सेसिबल यानी कि पॉसिबल टू रीच, इजी टू गेट, मतलब लोगों की जो ये पूरी चीज़ है ये इजीली कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? पार्लियामेंट तक पहुँचनी चाहिए। और पार्लियामेंट का काम है इसको ट्रांसपेरेंट, और ताकि लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकें, इसको ट्रांसपेरेंट यानी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जनता के सामने लाना चाहिए। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट. We have learnt about domestic violence. I have explained in this video. So students, will again come here with the next topic, that is unpopular and controversial laws. So thank you very much for the listening. Thank you.